अस्सलाम वालेकुम मैम। Assalamu alaikum. Please wait. Nadia, have you emailed me your presentation? Please let me know. It being recorded. Please write in chat. Nadia, please, have you? Okay. Have you emailed me your presentation? Yes, Nadia. Yes, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? I'm fine. ये बताइए जी कि वालेकुम अस्सलाम जी मैम आप नायला ने प्रेजेंटेशन आपको ईमेल की है। नायला। ओके ठीक है नायरा के नाम से ओके लेट मी चेक होगी एक तो यहाँ वेट फॉर व्हाइल इन्होंने एन से लिखा है थोड़ा सा जब तक ये डाउनलोड होती है यस ओके जी यस नॉट दिया एक्चुअली व्हाट हैपेंड ओके थैंक यू ठीक है बहुत कैन यू गाइस सी द स्क्रीन बिकॉज ये मेरे पास ब्लैंक हो गई है बिल्कुल बताइएगा चैट में can you guys see the application please tell me no let me know what I'm seeing ओके जी ठीक है जी सो व्हाट हु इज फर्स्ट नायला जी नायला प्लीज स्टार्ट Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम I'm beginning with the name of Allah Rahman and Rahim. Today, our topic is types of meaning.
My group members are Saima Hussein, Nadia, Urusa Ishaq, and Sumaya Hassan. Start, please. Types of meaning. ठीक है जी. Saima Hussain. Who is where are you? Who is going to present first? बेटा आप अनम्यूट ही हैं. आप क्यों बार बार कर रहे हो? नायला आप अनम्यूट हैं. चलें दोबारा आप. Okay, ma'am. Okay, got it. Okay, so types of meaning. But what is meaning? Meaning is the clear and concise description of how people are using the word. Now, how do we use the word? A word makes sense in one language, but it doesn't make sense in another language. So, what are the types of meaning? How do we create the meaning? Because one word has a meaning in one language, but it does not make sense in another language. In this meaning, these types do not only exist in English language, but they are kind of universal types. There are many ways to describe a meaning, and today we are going to describe those types. So first topic is the first. There are 4 types. There are 7 types we are going to explain today. Is conceptual meaning, connotative meaning, collocative meaning, reflected meaning, social meaning, thematic meaning, and affective emotive meaning. So the first topic is conceptual meaning. In semantic, conceptual meaning is a literal or core sense of a word. There is nothing read into the term, no subtext. The conceptual meaning is a literal meaning, what exists in a dictionary. Whatever a word can have different meanings, but what we read in the dictionary, that's the real meaning. That's the meaning. It's a conceptual meaning. So the examples are all the words in dictionaries, and these dictionaries are written by lexicographers. So whatever they write, this is those meanings, and those words are called conceptual meaning. So Simon, please continue. Okay, Saima. Please continue. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, my topic is connotation. Ma'am, I am audible? Yes. I will let you know if you are not. Okay, ma'am. Can I start? बिल्कुल. Like, ma'am, as we know, words and their meaning are important because you need to able to communicate your idea and as well as your feelings. It can be like dictionary meaning, encyclopedia meanings, or they can be literally meaning. But my topic is connotation, like something suggested by a word or thing, like the feelings and expression come into your mind that are beyond actual meaning are connotation. Connotation are differently from denotation. They are not from dictionary or they are not any literal meaning. Meaning of connotation is a secondary word used to express an idea, quality, or feelings that are associated to its literal meaning. Like, for example, if I am saying this cloth is affordable, I can say this clothes are cheap. So it sound like cheap better than the affordable. It's different. Cheap also defined as the low quality. Other example, he is such a dog. Here dog refers to ugliness or shameless for a person, not dog like an animal. So connotation defined as if I say that a woman is dove at heart, so here dove means that your heart is full of implies of peace and gentility, not like a bird. So there, like these types of meaning are add for our emotions. If I'm saying I am feeling blue today, so here blue refers to a sad, like black refers to an evil,
So here we add emotions. So connotation always add emotions, like your feelings that you feel in any form. So you use these words in your phrase and your words to complete your sentence, to complete your thoughts. That are not dictionary words, they What are is the just meaning of implication? implication, means to it applies on it. It's suit on someone's like personality, just it imply on it. Okay. Continue. Okay, ma'am. So like these, we can say whenever connotation, like we use it in reading, writing, and speaking as well. This is the main idea that we can use in any form of these sentences are grammatically correct, but they are syntactically they are maybe like some replaced. They are not like, we can say, rock in the stream, like these type of sentences. Thank you, ma'am. This is my today topic. Okay, Saima. Good. Very good. Very good. Thank you. Yes. Who's next? साइमा के बाद कौन है? यहाँ ही लिखते हैं, चैट में लिखते Sumaya, हैं. ma'am. Sumaya, ma'am, next. ओके जी, सुमैया. वेरी गुड नायला. डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. रखो अपने आप को. तुमने बोला या साइमा ने बोला? सुमैया हेरी. जी जी सुमैया, प्लीज स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. क्या एनर्जी है, माशाल्लाह. जी बोले. My topic is collocative meaning. This refers to what the communication through association with words which tend to occur in the environment of other words. Means collocative means refers to the association of the word because of its usual or habitual co-occurrence with the certain types of words. Pretty and handsome pretty and handsome includes the word good looking. For example, जिस तरह हम pretty girls के लिए यूज करते हैं और handsome boys के लिए यूज करते हैं. इसी तरह हम लोग बॉयज के लिए हम लोग प्रीटी वर्ड नहीं यूज कर सकते. प्रीटी वर्ड बॉयज के लिए सूट नहीं करता. इसी तरह हम लोग गर्ल्स के लिए हैंडसम यूज नहीं कर सकते. एक और एग्जांपल, जिस तरह कि हम लोग कह सकते हैं कि बिग बिजनेस, इस तरह हम लोग लार्ज बिजनेस वर्ड यूज नहीं कर सकते. अगर हम दूसरी मीनिंग ले, या हम ये भी कह सकते हैं कि दो अलग वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाएं. जिस तरह होमवर्क होम और वर्क दोनों अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन जब हम इनको एक साथ मिलाते हैं तो इसकी एक अलग मीनिंग बन जाती है. माय सेकंड टॉपिक वाज अफेक्टिव मीनिंग को हम इमोटिव मीनिंग भी कह सकते हैं. इट रिफर्स द इमोशंस एसोसिएटेड विद द वर्ड्स. जो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस स्पीकर के इमोशंस के बारे में बताएं, इसको हम लोग इफेक्टिव या इमोटिव मीनिंग्स कह सकते हैं. जिस तरह के जो चीज हम लोग जिस तरह एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक वर्ड होम एक कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर हम किसी एक ऐसे इंसान के सामने वो वर्ड यूज करें जो उस इंसान में लैक करती हो, जिस तरह अगर हम सोल्जर या किसी सेलर मैन के सामने होम वर्ड यूज करें तो वो उसके लिए इमोशनल होगा. या एक और एग्जांपल, जिस तरह हम लोग मदर वर्ड किसी मदरलेस चाइल्ड के सामने यूज करें तो वो उसके लिए इमोशनल वर्ड होगा. हम लोग अगर इसकी नेगेटिव एग्जांपल लें, जिस तरह सेंटेंस आई हेट यू यू इडियट, अगर किसी को इसकी अपनी नफरत किसी के ऊपर जाहिर करनी होगी तो वो सिंपली भी बोल सकता है आई हेट यू. लेकिन अगर वो किसी और कोई नफरत आमेज अल्फाज यूज करता है तो वो उसके जज्बात को डिफाइन कर रहा होता है कि वो कितना अग्रेसिव है उस लिसनर के बारे में, वो अपने जज्बात शो कर रहा होता है. इसी तरह पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. ये सारा डिपेंड करता है वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट के बेस पे. थैंक यू मैम, दैट वाज माय प्रेजेंटेशन. ओके गुड. नाम क्या है आपका? सुमैया. ओके जी, कौन है नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन है? नायला, नादिया. ठीक जी, नादिया, अनम्यूट योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम मैम.
वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, my topic of presentation is social meaning. Social meaning is sometimes defined stylistic meaning is that which a piece of language conveys about the social circumstances of its uses. Some words may have the same conceptual meaning, but have different social meaning or stylistic meaning. मतलब कुछ अल्फाज जो हैं वो हम अगर हम किसी अपने क्या नाम है टीचर किसी टीचर के लिए यूज करेंगे तो उसकी मीनिंग डिफरेंट होगी, लेकिन वही अल्फाज अगर हम अपने फ्रेंड के लिए यूज करेंगे तो उसकी जो मीनिंग होगी वो डिफरेंट होगी। मतलब सोशल मीनिंग मतलब माहौल के हिसाब से हम अपने वर्ड्स को चुनते हैं कि अगर हम किसी दोस्त के लिए अपने वर्ड्स को लेंगे तो वो डिफरेंट होंगे, और अगर हम किसी टीचर या किसी दूसरे इंसान के लिए उन वर्ड्स को लेंगे तो डिफरेंट तरीके से बोले जा रहे होंगे। तो इसको हम कहते हैं सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग इज रिलेटेड टू द सिचुएशन इन विच एन अटरनेंस इज यूज्ड। मतलब हम किस तरीके से उस अल्फाज को अटर कर रहे हैं और किस सिचुएशन में अटर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारी लोगों के ऊपर कि अगर फ्रेंड है तो उसके साथ हम किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस तरीके से वर्ड यूज कर रहे हैं, और अगर कोई टीचर है तो उनके साथ हम किस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं। For example, steed, poetic language के लिए use the horse, general language, nag, slang, gigi for baby language. For example, steed, horse, and nag are synonymous. They all mean a kind of animal, that is horse, but they differ in style and so have various social meaning. Steed is used in poetry, horse is used in journal, while nag is slang. The word home can have many use, also like domestic, official, residence, formal, about, poetic, होम ऑर्डिनरी यूज। तो मतलब एक ही वर्ड है लेकिन उसकी डिफरेंट मीनिंग हो जाती है, कहीं जहाँ मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में अलग है और अगर हम किसी अनफॉर्मल तरीके से बोलें तो उनकी जो मीनिंग है वो अलग हो जाती है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज थीमेटिक मीनिंग। Thematic meaning, it refers to what is communication by the way in which a speaker or a writer organizes the message in terms of ordinary focus and emphasis. Thus, active is different from passive through its conceptual meaning. इसमें जो थीमेटिक मीनिंग होती है इसमें क्या होता है कि मायने एक जैसे ही रहेंगे लेकिन जो वर्ड्स हैं उनकी अरेंजमेंट तब्दील हो जाती है। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ चल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ आ जाता है। मतलब उनकी जो थीमेटिक मीनिंग होती है वो सेम होती है मगर जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। द वे वी ऑर्डर अवर मैसेज also convey what is important and what not. This is basically thematic meaning. Examples: alternative grammatical construction also gives thematic meaning. Number one, he likes Indian good most. Number two, Indian goods he likes most. Number three, it is the Indian goods he like most. मतलब ये तीन sentences में अगर तीनों में जो arrangement of words है वो change है लेकिन तीनों की जो meaning है वो same है। इसकी another example ये है, the young man donated the book voluntarily. इसकी और the book was donated by young man voluntarily. मतलब दोनों की same meaning है but जो arrangement है वो change है। So this is called thematic meaning. So ma'am, that's all from our side, from my side. Okay. Yes, who's next? थोड़ा short रखिए. We have another group waiting as well. So if you have two topics, try to present only one topic, ठीक है? Which you can present really well. मैंने आपको बोला भी है। आपके ग्रुप में कौन रहता है? नादिया। Where is अरूसा एम इसहाक? कहाँ है? अरूसा एम इसहाक। अरूसा, where is अरूसा? नायला, She is absent. ओके। आपने उनको इन्फॉर्म किया था? चलो ठीक है। ओके जी, जुनेद। जुनेद ग्रुप, ओके मैं देखूँ आप। या अल्लाह। ओके फिर जुनेद जी, अनम्यूट योरसेल्फ जुनेद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम may I share my screen? आई विल शेयर इट। एक मिनट, आप मुझे अपने ग्रुप मेंबर्स का नाम बता दीजिए। जुनेद आप हैं, और कौन कौन है? जुनेद, जी जुनेद। Hello मैम। एक सेकंड भाई, मेरी चेयर को कुछ हो गया है। एक मिनट, क्या? सॉरी, निकलो यहाँ से, एक मिनट। Okay. तो मेरा छोटा किटन आया हुआ है। ओके जी। जी जुनेद, शुरू आप स्टार्ट करिए। मुझे पहले अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम बता दीजिए, एंड देन यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन विद योर टॉपिक प्लीज। वी हैव वेरी few यस बताइए। Okay मैम। मैम our group member name is Abdullah Junejo, Babar Ali, Sarwar and Samir. ओके जुनेद, जो ये एक ही एक बच्चे हैं ना, डबल डबल नाम वाले तो नहीं Yes है ना? मैम। No जुनेद, Abdullah Junejo। Abdullah Junejo। जुनेजो, बाबर अली और सरवर, गुलाम सरवर। ओके, पूरा नाम लिया करें ना। मैम और लास्ट में समीर। अम्मी, ठीक है जी, स्टार्ट प्लीज। Assalamu alaikum to everyone. Today our presentation is about theory of semantics. Now Mr. Abdullah, please ma'am please change the slide. हम यू गाइस कंटिन्यू, आई एम राइटिंग, आई विल चेंज इट, डोंट वरी। Okay, Abdullah, please start. अब्दुल्ला, यस अब्दुल्ला, अनम्यूट योरसेल्फ। राइट इन चैट कि हु इज, यस। Assalamu alaikum, ma'am. I hope so. You all will fine and well healthy. So today my वालेकुम अस्सलाम, यस कंटिन्यू अब्दुल्ला। ma'am, today my topic is referential theory, which is I am going to explain in front of you. So the concept is that we denote, designate, represent, refer, or name things with words and helps to identify that what actually we are talking about. Words are linguistic symbols or labels to things. We donated things by their name to easily refer to them. तो सर यहाँ मैम यहाँ पे रेफरेंशियल थ्योरी यहाँ पे ये कहती है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक परफेक्ट नाम दिया गया है। चाहे कोई भी चीज हो, उसको एक लेबल दिया गया है, उसको एक आइडेंटिफिकेशनल एक सिंबल दी गई है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो नाम लेके, उस चीज का नाम लेके हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या लोगों के सामने उस चीज को एक्सपोज कर सकते हैं, या उस चीज की जो है एक्चुअलिटी को या रियल फैक्ट को हम जो है एक्सपोज कर सकते हैं लोगों के सामने, और हम खुद भी जान सकते हैं। तो मैम इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, व्हेन वी कॉल अ पर्सन विद देयर नेम सच एज अशफाक, or we can say Junaid. The name Junaid is representing the person and we easily identify him. अब जब हमारी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, मैं किसी को कहूंगा कि आप आ जाओ तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसको बुला रहा हूं। लेकिन जब मैं एक प्रॉपर नेम से किसी को मैं अनाउंस करूंगा, किसी को मैं बुलाऊंगा, फॉर एग्जांपल जुनैद का जो है नाम लेके मैं उनको अनाउंस करूंगा, तो सबको पता चल जाएगा, सबके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इस बंदे को, इस लड़के को या इस लड़की को बुलाया जा रहा है। तो हम जब मैं जुनैद नाम लूंगा तो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, वो आइडेंटिफिकेशन हुई उसका नाम जुनैद, क्योंकि उसके उस वैसा कोई और नाम हमारी क्लास में नहीं है। तो ऐसी हर चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं, मखसूस उनके लिए एक नाम रखा जाता है जिस नाम से हम उन्हें बुलाते हैं या अनाउंस करते हैं। तो सुनने वालों के भी माइंड में वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि इस चीज को बुलाया जा रहा है, इस चीज को बताया जा रहा है, इस चीज को अनाउंस किया जा रहा है। और उसके बाद में सेकंड एग्जांपल मेरी है, व्हेन समवन स्पीक्स द वर्ड्स
yet we start imagining an actual pen in our mind because the pen word pen refers to the pen we write with. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कोई यहाँ पे एक वर्ड पेन मेंशन किया गया है, यहाँ पे हम कोई भी चीज एक जो है मेंशन कर सकते हैं. मैंने अब कोई गाड़ी का नाम लिया, अब हमारे सामने हमारे मतलब इन फ्रंट ऑफ अस अ थिंग व्हिच आई एम I want to see or I want to know, then I will announce the name. For example, a car. तो मैंने किसी एक कार का नाम लिया with its model. तो मैं जब किसी कार का नाम लूंगा उसके मॉडल के साथ, तो सबके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इस गाड़ी की इस मॉडल का जो है डिस्कस किया जा रहा है. तो सबके माइंड में आ जाएगा कि ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है या पूछी जा रही है. उसके अलावा मैम थर्ड एग्जांपल है. ठीक है अब्दुल्ला, नेक्स्ट प्लीज, हमारे पास टाइम बहुत कम है. ओके, थैंक यू मैम. ओके, हु इज नेक्स्ट? बाबर अली कौन है? जल्दी बताओ. जुनैद मुझे उसमें लिख दो चैट में, मैं जल्दी से करूँ बिकॉज़ वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम. यस, आपकी बारी है. ओके, ठीक है जी. जी, अनम्यूट योरसेल्फ बाबर अली और क्विकली फिनिश इट. शाबाश. Assalamualaikum ma'am. वालेकुम अस्सलाम. प्लीज स्टार्ट कीजिए. Today my topic is hello, आवाज आ रही है मैम? जी जी, वालेकुम अस्सलाम. प्लीज स्टार्ट कीजिए. Cognitive theory. Cognitive theory is simply defined as this theory is linked with human cognition of understanding the language, sentence and words. If we don't know the words, then the words are nothing to us. Means to say, in this theory हम उस इल्मी नज़रिया की तारीफ मतलब कि हम इस थ्योरी में किसी की ज़बान या जुमलों और अल्फाज को समझने की अदराक मतलब कि वो रखते हैं, मतलब समझने की सलाहियत रखते हैं, मतलब कि उनके अल्फाज से उनके ज़बान को समझने की सलाहियत रखते हैं. अगर हम मतलब कि किसी का कोई मतलब कि अब कोई इंग्लिश का वर्ड हो, अगर हम उसको समझ नहीं पा रहे होंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि अगला बंदा हमें क्या कहना चाह रहा है. और इसकी एक मिसाल ये है, फर्स्ट एग्जांपल इसकी ये है कि अ चाइल्ड कॉल्ड हर मदर मामा बट व्हाई डजंट शी कॉल्ड हर फादर. दैट्स व्हाट दिस थ्योरी अलाउज टू कॉम्प्रिहेंड. मीन्स टू से एक बच्चा अपनी माँ को मामा के माँ क्यों नहीं कहता. ये वही नज़रिया है, जो हमें मतलब कि समझाता है कि हमें कोई वर्ड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए. और इसकी दूसरी एग्जांपल है, तो चाइल्ड क्यों नहीं कहता फादर? ये भी तो जी बताइए. तो चाइल्ड क्यों नहीं कहता पापा? ये बात भी तो बताइए. यूज मतलब जी जी बिल्कुल. उसको पता होता है ना कि वो उनको बताया जाता है कि ये वर्ड कहाँ पे मतलब किस टाइम पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है. उस तभी वो नहीं कहता. ओके ओके, ठीक ठीक ठीक. जी सेकंड continue. एग्जांपल ये है कि वी नेवर यूज सच वर्ड्स दैट आर नॉट इन आवर कॉन्गिनेशन. मतलब कि हम कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जो हमारे मतलब कि हमारे समझ में ना हो. पहले हम अल्फाज को समझते हैं, देन हम उसको कहीं पे यूज़ करते हैं. हमको पता चलता है कि ये वर्ड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए. सो मैम दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. नाउ आवर मेंबर विल बी. ओके, ठीक है. थैंक यू. वेलकम. समीर. ओके, यस समीर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. प्लीज प्रेजेंट. So, ma'am, my topic is possible world theory. ओके. It was basically coined by Aristotle for cosmological and phenomenological purposes. Cosmology is not exact what it is. It doesn't concern on exactness.
that nothing is exact, यानी कोई भी चीज exact नहीं cosmology में. तो इसलिए एरिस्टोटल ने एक थ्योरी दी, पॉसिबल वर्ल्ड थ्योरी, जो बाकी के दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इनेक्टेड होने लगी. There are possibilities in a world. It's a world, but in this world there are possibility in this world. So for this I've got two examples for it. That there is a door opener robot. We made this robot with artificial intelligence, and its purpose is to open the door. And there are two possibilities: the door is locked and closed, and the second possibility is door is not locked but closed. And the second example is, if a person is suffering with cancer, there are two possibilities. कॉस्मोलॉजिकल जो आपने वर्ड यूज किया वो क्या है? मैम ये कॉस्मोलॉजी से जुड़ा हुआ जो एस्ट्रोफिजिक्स का एक ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स में कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, तो एरिस्टोटल ने ये मेथड निकाला था कि कोई भी चीज अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इसके लिए हम पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, उन पॉसिबिलिटीज का पीछा करेंगे और देखते हैं किस रिजल्ट तक पहुंचते हैं. Yes, continue. The second example is, if a man is suffering with cancer, the possibilities are he'll die, but maybe he doesn't die. There is also a possibility. Shall I go for the third example, ma'am? Yes. Who is next? After, are there more students or just one or two? How many students? You can go for the third. Just one. Just what about the Okay. another one? There is Junaid only. Okay. Shall I go for the another? Yes, yes, sure. Okay. If a student is working hard for his exams, there are two possibilities. What if he hasn't worked smart but worked hard? He studied for things that are not necessary for the exams, so he'll fail on as well. If he can pass, he can be failed as well. That was the third example, ma'am. Thank you. Well, That's was all. okay. Now, who is next? Junaid. Junaid. Yes, please unmute yourself and start. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Where is Am I your doing good? another? Yes, you are audible. Where is that another classmate of you, Ghulam Sarwar? Ma'am's Ghulam Sarwar is not present because he has some issues with his family. That's why. Okay. चलें जी, ठीक है. Okay, ma'am. Start. Sorry. Now I want to tell you about use theory. Language is learned by a constant, as B.F. Skinner said that we identify the words by the usage. People different words in different sentences. We identify those words by the sentences they are used. तो इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जैसे कि B.F. स्किनर ने के मुताबिक जबान एक मुस्तकिल महरूम सीखी जाती है. मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जो वो अल्फाज बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम अल्फाज को उनके इस्तेमाल से पहचानते हैं. तो फिर लोग जो है ना अलग अलग तरीके से अल्फाज यूज करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो बंदा बोल क्या रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है. तो लोग मुख्तलिफ जुमलों में अल्फाजों को जो है ना इस्तेमाल करते हैं. हम उन अल्फाजों के जो है ना शनाख्त कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं वो बोलना क्या चाह रहा है, उसकी अल्फाजों की अदायगी क्या है, उसके मुताबिक हम जो इस्तेमाल उनके अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं. मैम उसके बाद मैं जो है ना फर्स्ट एग्जांपल. यस सर, बोल रहे मैम. मैं अपनी मोबाइल में आपकी प्रेजेंटेशन देख रही हूँ. असल में इसको मैं यहाँ से मूव करूंगी ना तो ये कहीं कुछ हिल ना जाए, इस वजह से. यू कैन गो ऑन. ओके मैम. ओके मैम. मैम फर्स्ट एग्जांपल है, वी यूज वर्ड अकॉर्डिंग टू द यूसेज सच एज pronunciation, peace or iron. Here we know that iron is a stone and heavy subject. So the word boundaries is used in their sentence and define the complete meaning. तो मैम अब जो है ना हम अल्फाज को उनके इस्तेमाल के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एक लोहा है, ठीक है, हमें पता है ये लोहा है, एक भारी अल्फाज है, तो मीन्स हमारे माइंड में एक इमेज बन जाता है कि कोई लोहा होगा जो कि काफी हैवी होगा, तो उसके मुताबिक अल्फाज हम रखते हैं. इसलिए इस जुमले में मुकम्मल मायने बयान करते हैं कि कोई लोहा, हम समझ जाते हैं कि ये लोहा है, कोई काफी भारी चीज है. तो उसके बाद सेकेंड हम मेरा जो है ना एग्जांपल है, द मीनिंग इज आवर लैंग्वेज आर external which people provide us by comparing these two sentences. You are so intelligent.
and other is you are too intelligent. Both the sentences are mean that some is intelligent, but second one is said repeatedly. How did we get to know that? The second one is ironic sentence. It is because we have observed people that is the often used to know something. तो मैम अब ऐसा है कि हमारे जबान जो लोग हमें फराहम करते हैं, जो चीज़ें हमें बोलते हैं, हमको हासिल कर लेते हैं। इन दो जुमलों में जो मुआवजा अगर हम करें, एक में क्या कह रहा है, यू आर सो इंटेलिजेंट, तो हम समझ जाते हैं किसी की जो बंदा इंटेलिजेंट है वाकई में उसको बोल रहा है। तो दूसरा जो है ना, यू आर टू इंटेलिजेंट, तो हम डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि जो बंदा ये अल्फाज कह रहा है कि वो मजाकिया अल्फाज में तो नहीं कह रहा, क्योंकि हमें पता है कि वो बंदा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन हम उसके बावजूद उस पर मजाक उड़ाने के लिए क्या बोलते हैं, यू आर टू इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस पर मजाक मजाक के तौर पर उस पर मजाक उड़ाते हैं। So ma'am, this all about use theory. I have done, ma'am. Thank you so much for listening us. Okay, चलें. Anybody else left? Junaid, he No, was- ma'am, there is no one. We all are. Oh, Zubair is here, I think. Zubair, you want to present or something? Please बता दें मुझे. Where is your group? Zubair, where is your group? Zubair.